Now in this question again we have to make pair of linear equations and then we have to solve them by substitution method. So what it is given? It is given the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800 and later means बाद में she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. Means we have to find the cost price of one bat and one ball. So our solution, we will start from that only. Let, I am using the short form, let the cost price of one bat be X and cost price of one ball be Y. This we have taken. Now according to question, now we will see the condition from question. Now according to question, what they are telling, a cricket team coach buys 7 bats. तो एक बैट x का है तो 7 बैट आ जाएंगे 7x प्लस 6 बॉल्स, तो एक बॉल y की है तो 6 बॉल्स विल कम 6 इंटू y इज इक्वल्स टू रुपीज 3800. 3800. Here we are not putting the sign of rupees because we are writing in the form of linear equation. ये एकदम सिंपल फॉर्म में ही है, nothing can be taken common, so we will name it as equation 1. सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं अपन. लेटर शी बाइज 3 बैट्स, तो वो 3 बैट खरीद रही हैं. तो एक बैट x का है तो 3 बैट कितने हो जाएंगे 3 इंटू एक्स प्लस 5 balls. तो 1 ball is of y rupees, तो 5 balls will be equal to 5y is equals to total cost came 1750. Again if we look it properly, nothing can be taken common, so this is only the simplest form. So this is the two equations we have made linear pair of equations. Now we will be solving these equations with the help of substitution method. अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन हम चूज करें, तो we will choose equation 2. ये छोटी और easy लग रही है. ओके, so we will write here by equation 2 we get value of, हम x की निकालते हैं. ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी. राइट द इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू 750, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y. ओके, नाउ x ये मल्टीप्लाई में है, वी विल ब्रिंग इन डिवाइड. 1750 माइनस 5y, आई विल पुट हियर ब्रैकेट अपॉन में 3. डो नीड टू कैंसल हियर, ऐसा कुछ कैंसिल नहीं करेंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे बिकॉज दिस टर्म इज हैविंग y एंड इट इज नॉट हैविंग एनी वेरिएबल. ओके, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ x. अब ये वैल्यू ऑफ x हमें मिली है फ्रॉम इक्वेशन 2, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. Okay, so we'll write here putting the value of x in equation 1. We will put in the equation 1. So let's first write the equation 1. It is 7x plus 6y is equals to 3800. So we will put the value. So 7 तो will come as it is. यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 1750 माइनस 5y अपॉन 3 देन प्लस 6y is equals to 3800. now here nothing in denominator, so we will assume 1. तो हम LCM ले लेंगे, तो LCM will come 3 only. यहाँ पे we will copy as it is because any number divided by 3 we will get 1. 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम थिंग विल कम as it is, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल कम 3. 3 6 it's 18. y is equals to 3800. अब ये 3 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा. तो वी विल राइट द इक्वेशन. आई एम राइटिंग फ्रॉम हियर, टॉप से लिखूंगी मैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी. इस इक्वेशन में यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, लुक हियर, व्हेन वी विल बी ट्रांसपोजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर 3 साइमल्टेनियसली, ये और ये भी 7 आई विल मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट. so let see, so we will multiply 7 also inside.
okay, with both the terms. So 7 into 1750 minus 7 into minus 5 plus 18y will come as it is, और 3 जो denominator में will go that side in multiply. So we will get 2 means 12,250 minus 35y plus 18y is equals to 11400. Now see, this is the like terms, both terms are having y, so we will solve them. और यहाँ पे जो हमारा 12,250 है, we will transpose it to that side. तो यहाँ पे solve करते हैं, minus 35 y plus 18, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, ओके. एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी गेट द आंसर एज 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा, 2 1 साइन विल कम ऑफ माइनस, क्योंकि बड़े नंबर का आता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1400 माइनस 2250. अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट, सो विल कम 0 5. Okay, so here will come 0 5 and 8 and it will be in minus sign because ये quantity बड़ी है. minus 17 5. अब we need only y, तो 17 जो है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ओके. minus 850 अपॉन minus 17, एंड इफ वी रिकॉल द टेबल ऑफ 17, माइनस से तो माइनस कट गए, और ये 17 1 जा और 17 it's 5 जा, and 0 will come as it is. So y we get it as 50, मतलब y हमारे पास कितना आ गया 50. Now we will find the value of x. तो what will be the value of x? तो again look here, ये अपन ने एक बनाई थी to find the value of x. इसको हम नाम दे देंगे equation 3. Clear? So we'll write now, putting the value of y in इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 है, ओके. एंड नेक्स्ट स्टेप वी विल पुट द वैल्यू, तो 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3. अगेन ब्रैकेट लगाना ना भूलें, एंड डोंट कट अपसाइड डाउन, कुछ भी नहीं कैंसिल होगा. फर्स्ट विल मल्टीप्लाई 1750 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 250 अपॉन 3, देन वी विल सब्ट्रैक्ट, सो 0 0 3, तो x इज इक्वल्स टू 500. Let's check the calculation once again, okay, and we will write दस लास्ट लाइन लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ वी हैव टेकन बैट, हमने बैट की कॉस्ट कितनी ली थी x, b x ली थी, तो x कितना आया अपना 500. अब नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, तो यहाँ पे यूनिट लगेगी, दैट इज रुपीज, एंड वी विल राइट कॉस्ट ऑफ बॉल, ओके. अपन ने ली थी b y, हमने y ली थी, है ना, इज इक्वल्स टू कितना आया, यहाँ पे ये ब्रैकेट चाहे तो आप ये ब्रैकेट में लिख दें, हमने एज्यूम करी थी बी वाई, और वाई वॉट वी आंसर गॉट, वाई गॉट वी 50, बट क्योंकि यहाँ हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं, तो वी विल राइट हियर ₹50. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू ₹50 एंड कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल्स टू ₹500.